Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 63 from CAT 2019 paper. Now we'll look at the question. Okay. So the question says, a large store has only three departments: clothing, produce, and electronics. The following figure shows the percentage of revenue and cost from the three departments of the year 2016, 17, and 18. The dotted lines depict the percentage levels. For example, in 2016, अगर हम 2016 की बात करें, ठीक है, 50% of the store's revenue came from its electronics department. तो अगर revenue की बात करें 2016, which is the blue line, so 50%, ये जो outer line है वो 50% represent कर रहा है, जो inner line है वो 10% represent कर रहा है. So 50% of the revenue came from the electronics department, while 40% of its cost, जो cost की अगर line देखे 2016 में, was incurred by the produce department. तो अगर 2016 blue line हम देखें तो 40% है produce का in 2016. ठीक है. So pretty simple to interpret the diagram. अब आगे क्या लिखा है? In this setup, profit is computed as revenue minus cost, and the profit percentage is computed as profit divided by cost into 100. ठीक है? It is further known that the percentage profit for the store in 2016 was 100%. तो हमारे पास क्या क्या दिया है? 2016 है हमारे पास, 2017 है, एंड देन 2018 है. हमें हर एक साल का कॉस्ट स्ट्रक्चर पता है, एंड देन रेवेन्यू स्ट्रक्चर पता है, निकालना है बेसिकली. ठीक है. तो अगर percentage profit of 2016 was 100%, that means let's say the cost of 2016 was X, then how much has to be the revenue so that the percentage profit would be 100%? Percentage profit कितना है? Profit divided by cost. Profit is how much? Revenue minus cost. So revenue minus X divided by cost X into 100 is equals to 100%. ठीक है. So इसका मतलब क्या है? 100 से 100 कटा, r minus x divided by x needs to be equals to 1. ठीक है. तो r minus x needs to be x. Basically x will be multiplied by 1. r will be how much? 2x. इतना कैलकुलेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए, वैसे बस बता रहा हूँ कि आई जस्ट शोड इट टू यू. अगर 100% प्रॉफिट हो रहा है, सो ऑब्वियसली जितना कॉस्ट लगा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है. रेवेन्यू वुड बी 2x. ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इतना तुम्हें प्रैक्टिस में चाहिए कि तुम बिना करे आए तुम्हें ये सब. ठीक है. So revenue would be 2x. Second statement says the store's revenue doubled from 2016 to 2017. तो जो revenue है 2016 से 17 में डबल हो गया. अगर ये revenue 2016 में कितना था 2x, तो डबल होके कितना हो गया 4x. And its cost doubled from 2016 to 2018. 2016 में cost थी x, तो 2018 में कितनी हो जाएगी 2x. ये हो गया हमारा, ये वाला स्टेटमेंट हो गया. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है there was no profit from electronics department in 2017. इसका मतलब कितना है कि जितना कॉस्ट लगा था उतना ही रेवेन्यू आएगा, तभी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा. प्रॉफिट इज बेसिकली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट. अगर हम 2017 देखें, लेट्स लुक एट द रेवेन्यू ऑफ 2017 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट. ठीक है. वी नो दैट इन 2017 इट्स अ ऑरेंज लाइन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट. अगर हम रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू ऑफ 2017 इज 4x. द रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इज द 30% आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू. ठीक है. So the revenue from electronics department is how much? 0.3 into 4x, which is how much? 1.2x. And there was no profit from electronics departments. That means जो cost होगी electronics department की वो भी 1.2x होगी, क्योंकि revenue तो जितना आया उतना ही cost होगा, तब भी profit जीरो होगा. ये revenue है,
ये कॉस्ट होगी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की। लेट्स से कि 2017 में दिस वाज सी, ठीक है, C7 था लेट्स से टोटल कॉस्ट। उसका कितना, उसका 40% इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। दैट मीन्स 0.4 into C7 is from the electronics department, and that is equals to how much? That is equals to 1.2x, because revenue has to be equal to cost, तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जीरो होगा। सो 0.4 into C7 is 1.2x। तो C7 कितना हो जाएगा? C7 equals to 1.2x divided by 0.4, which is how much? 3x। तो C7 कितना आ गया? C7 हो जाएगा 3x। ये 3x हो गया। हमने ये वाली स्टेटमेंट भी देख ली, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट सेज in 2018 the revenue from the clothing department was same as the cost incurred in the produce department। अब हम 2018 को देखते हैं। 2018 is basically this brown line, ब्राउन नहीं सॉरी डार्क ग्रीन लाइन, ठीक है। डार्क ग्रीन लाइन की अगर हम बात करें तो 2018 में revenue from clothing department was same as the cost incurred in the produce department। we know अगर हम कॉस्ट की बात करें हमें पता है 2x है टोटल 18 में। उसमें से प्रोड्यूस डिपार्टमेंट का कितना है? 50%। सो यानी x, 50% of 2x is x। x is the cost incurred by produce department in 2018, which is same as the revenue from clothing department। Let's say the revenue of 2018 is R8, ठीक है। उसमें से क्लोथिंग डिपार्टमेंट का कितना है? 2018 का रेवेन्यू 40%, ठीक है। सो दैट मीन्स 0.4 into R8 is equals to x, which is the cost incurred in the produce department। ये दोनों सेम में बताया गया है। तो R8 कितना हो जाएगा? x divided by 0.4, which is how much? 2.5x। तो R8 कितना हो जाएगा? 2.5x, ठीक है। नाउ वी हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट भी हमने देख ली। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ स्टोर इन 2018? 2018 में परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, विच इज 2.5x माइनस 2x, 0.5x डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बेसिकली हम। प्रॉफिट माइनस डिवाइडेड बाय कॉस्ट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना है? 2x into 100, which is how much? 4। 100 divided by 4, which is how much? 25%। तो पहले वाले का आंसर कितना है? वेरी सिंपल, 25%, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज what was the ratio of revenue generated from produce department in 2017 to that in 2018? अगर हम रेवेन्यू का बात करें 2017 वर्सेस 2018 ऑफ प्रोड्यूस डिपार्टमेंट 2017 was 40% of what? 4x। so 0.4 into 4x divided by 2018 में प्रोड्यूस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू इज अगेन 40% ऑफ हाउ मच? 0.4 into 2.5x, कि टोटल रेवेन्यू 2.5x है। 0.4 गया, दिस इज हाउ मच? 8 डिवाइडेड बाय 5, x से x चला गया। सो रेशियो कितना आ गया? 8 डिवाइडेड बाय 5। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज what percentage of total profits of the store in 2016 was from the electronics department? ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है इन 2016।
2016 में जो टोटल प्रॉफिट है वो है x, 2x माइनस x, टोटल प्रॉफिट है x। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का 2016 में रेवेन्यू कितना था? ब्लू लाइन को देखें, रेवेन्यू इज 50% ऑफ 2x विच इज x। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू इज x। कॉस्ट अगर देखें, कॉस्ट कितनी है 2016 की? इट इज 30%। 30% ऑफ हाउ मच? x, विच इज 0.3x। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ये कॉस्ट आ गई, रेवेन्यू आ गया, टोटल प्रॉफिट कितना है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 0.7x। 0.7x प्रॉफिट आया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। पूरे साल भर में प्रॉफिट कितना था? 2x माइनस एक्स विच इज x। x टोटल प्रॉफिट है, 0.7x उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में से आया। सो व्हाट परसेंटेज केम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट? 0.7x डिवाइडेड बाय x which is how much? 70%. So 70% of the profit came from the electronics department in 2016. ठीक है? Now moving on to the last question. What was the approximate difference in profit percentages of the store in 2017 to 2018? 2017 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? अगर हम 2017 का प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट कितना है? 4x माइनस 3x। x प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट विच इज 3x इंटू 100। ये कितना आ जाएगा? x 1/3, ये कट जाएगा 1/3 डिवाइडेड, सो 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.3% प्रॉफिट परसेंटेज है इन 2017। इन 2018 प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 2.5x माइनस 2x, 0.5x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 100। x से x कटा, दिस इज 1/4, 100 divided by 4, profit percentage is 25%. So the difference between 2017 and 2018 का profit percentage is how much? 33.5, 33.3 minus 25, which is how much? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8.3%। ठीक है, 2018 में बेसिकली कम हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंटेज? 8.3। ठीक है, 8.3333 है, बट ये अप्रोक्सीमेट पूछा गया तो 8.3। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो आई होप this set was clear to you. Again, a very simple set, basic arithmetic. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.